Let's start the session now. This is Rishabh Jain. Welcome you all in today's session. Today, no computer science class. Today we have grammar class as sir is busy in the school. That's why. So let's begin with the session. Still students are coming, so let them join. Till then, I think we should revise the previous part what we studied in the last session, right? जो हमने last session में पढ़ा था एक बार हम उसको revise कर लेते हैं dear students. And as the new students will come, we will start with the new concept or with the new topic, right? चलिए. Listen very carefully. We started chapter number 17, that is perfect tense, present, past, and future. Right? This we started present, past, present perfect tense, past perfect tense, and future perfect tense. We started with this thing. Perfect tense has three parts: present perfect tense, past perfect tense, and future perfect tense. We started with this, and we completed the present perfect tense part. है ना? Present perfect tense क्या होता है? ये हम लोगों ने study और discussion इसका हम लोगों का हो गया था. It was very simple. Subject plus has have plus past participle, that is the V3, or you can say the third form of verb plus object. In this manner you have to make these sentences, right? So this we have completed. Now the present perfect tense is used to express an unspecified time in the past. यानी कि past में कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ही unspecified थी उसको represent करने के लिए भी आप present perfect tense का use करते थे, राइट. नेक्स्ट किसी एक्सपीरियंस को डिनोट करने के लिए, किसी एक्सपीरियंस को बताने के लिए जब डिनोट करते थे तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता था. टू टेल समथिंग अबाउट एन इवेंट, है ना, किसी इवेंट के बारे में जब बात करनी होती थी डियर स्टूडेंट्स, देन आल्सो वी यूज टू गो विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड अ चेंज दैट हैज हैपेंड ओवर टाइम, यानी कि पिछले कुछ समय के साथ साथ वो बदलाव आया है या वो चेंज आया है तो उसके साथ भी हम क्या यूज करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही यूज करते हैं, राइट. So that part we have completed. Now it's time to start something new, that is past perfect tense, right? Yeah, so let's begin with that part. Yes, so we have today, the topic we have today is past perfect tense. Now what is this? Let's understand. No need of book right now, you can just simply look on the screen and understand what I'm trying to explain, right? There is no need of book right now. ठीक है, just keep it with you. Whenever it will be needed, I will tell you. So that is past perfect tense, right? The sentence that tell us about actions that were completed before another action in the past are said to be in the past perfect tense. We use had plus past participle to express this tense. Now, what it is trying to say, let's understand. See dear student, those sentences that tell us about action, यानी कि ये वो sentences हैं जो हमारे उन actions के बारे में बताते हैं that were completed before another action in the past. समझना वापस से, that were completed before another action in the past, यानी कि पास्ट में कोई आपने एक एक्शन किया और उसके भी पहले ये वाले काम हो चुके थे. ठीक है, जैसे आपने पास्ट में लेट्स सपोज किया, आपने क्या किया, यू टुक योर ब्रेकफास्ट, ठीक है, और उससे भी पहले आपने क्या किया था, वाटर ड्रिंक किया था. ठीक है, ब्रेकफास्ट करने से पहले आपने वाटर ड्रिंक किया था. सो व्हाट दैट ड्रिंकिंग वाटर विल बी, दैट विल गो इन दी पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है, आई हैड ड्रंक वाटर and taken my breakfast, ठीक है, और took my breakfast. ठीक है, I had drunk the water and took my breakfast. So past में जो past simple के पहले भी जो action हुआ है, ठीक है, यानी कि past में कोई action हुआ था उसके भी before, उसके भी पहले आपने कोई action perform किया, that will go under the past perfect tense. Let's suppose इसको simple इस तरीके से समझिए कि this is your present moment, ये आपका क्या है, ये आपका present moment है. ठीक है, past में आपने कोई work किया था, so that is the past tense. पास्ट में कोई आपने वर्क किया था तो दैट इज योर पास्ट टेंस. और इसके भी बिफोर मींस इसके भी पहले अगर आपने कोई एक्शन किया है सो दैट विल बी योर पास्ट परफेक्ट टेंस. ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा डियर स्टूडेंट. व्हाट दिस विल बी योर पास्ट परफेक्ट tense, right? I hope that is clear. So it is like a chain. This is your present moment, right? You did something in past, that is past simple, or before this you did something, so that is your past
परफेक्ट टेंस, दिस इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस, ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट हो जाएगा। आई होप दैट यू ऑल आर गेटिंग राइट। So this was all about the past perfect tense. Now how we use it? We use had plus past participle. हम इसमें क्या यूज करते हैं dear students? हम इसमें had और past participle को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? had plus past participle को यूज इसमें किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, had प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और had जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होती है, had जो होता है ये had क्या होता है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब होती है। हेड क्या होती है डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब होती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स, इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं एक बार, इसका फॉर्मेट क्या होगा। सब्जेक्ट आप यूज करोगे सबसे पहले, देन यू विल पुट हैड, आप हैड लगा दोगे। पास्ट पार्टिसिपल इज नथिंग बट जस्ट दी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज V3, yes or no, you know all that past participle is V3 and then sorry just a second, yeah, yes, and then what you will use the object part, right। हम लोग अभी बहुत सारे एग्जांपल्स इनको समझेंगे ताकि आपको बहुत इजीली इस चीज को, ये चीज आपको क्लियर हो जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो क्या चीज एक्सप्रेस करने के काम में आता है, दैट वी हैव टू गो विथ। चलिए लेट मी जूम इट, आई थिंक दैट इफ इट इज नॉट विजिबल, font size थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। Now I think it would be visible to you. So let's start this. Past perfect tense is used to express a complete action before something else in the past. ये मैं आपको already past, अभी जब हमने past perfect tense की definition पढ़ी, in that tense also we studied the same thing कि past perfect tense को कब use किया जाता है dear students, a completed action, a complete action before something else। बिफोर मतलब पहले, किसी चीज के पहले, ठीक है, यानी कि कोई एक्शन आपने किया था उसके पहले का जो एक्शन कंप्लीट हुआ हुआ है, ठीक है, ठीक है, पास्ट में आपने कोई एक्शन किया उसके पहले भी कोई एक्शन कंप्लीट हुआ हुआ है तो उसके लिए यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके लिए क्या यूज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस किया जाता है। जैसे इसको इस तरीके से समझिए एग्जांपल से, व्हेन वी अराइव, जब हम वहां आए, द फिल्म हैड स्टार्टेड, यानी कि हमारे पहुंचने के पहले ही फिल्म क्या हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी, हम तो बाद में पहुंचे, यानी कि हमारा पहुंचना पास्ट का टेंस है और उससे भी पहले क्या हो चुका था, फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, व्हेन वी अराइव्ड, अराइव्ड मींस व्हाट, अराइव्ड तो ऑलरेडी मींस क्या होता है, पास्ट की बात हम करते हैं और उसके भी पहले फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। सो व्हेन वी अराइव्ड द फिल्म हैड स्टार्टेड, ठीक है। नेक्स्ट आप समझिए, व्हेन आई रीच्ड द लाइब्रेरी, जैसे ही मैं जब लाइब्रेरी पहुंचा, द लाइब्रेरियन हैड लेफ्ट, जो लाइब्रेरी वाली मैम है या लाइब्रेरी वाले सर हैं, दैट मींस द लाइब्रेरियन हैड लेफ्ट, लाइब्रेरियन ऑलरेडी क्या था, जा चुके थे, जो लाइब्रेरियन थे वो ऑलरेडी जा चुके थे, ठीक है। लेट्स सपोज एक और सेंटेंस हम अभी बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जस्ट अ सेकंड, या लेट्स मेक वन मोर सेंटेंस हियर ओनली, व्हेन I reached the station, the train had left, जो ट्रेन थी वो क्या थी, ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि जब मैं स्टेशन पे पहुंचा उससे पहले ही जो ट्रेन थी वो क्या थी, जा चुकी थी। तो मैंने जो रीच किया, आई रीच लेट, है ना, मैं लेट पहुंचा, बट द ट्रेन हैड लेफ्ट ऑलरेडी, ट्रेन उससे पहले ही अपना वर्क कर चुकी थी, जो ट्रेन थी वो मेरे से भी पहले जा चुकी थी, right? So it is something like that. It's very simple. Now move on to the next one. Just a second here, student. Yeah. Move on to the next one. To give a reason for something in the past. यानी कि पास्ट में कोई चीज हुई हुई है, उसका आपको क्या देना है, उसका आपको रीजन देना है। So how you gonna give that? How you are going to make that sentence? I had eaten dinner, so I was not hungry. ठीक है, आपको किसी चीज का रीजन देना है तो आपने क्या कहा, देखिए ये आई अपोस्ट्रोफी डी का मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, दिस मीन्स आई हैड, ठीक है, इसका आई अपोस्ट्रोफी डी का मतलब क्या होता है, आई हैड ईटन डिनर सो आई वाज नॉट हंग्री, ठीक है, मैंने अपना डिनर
ले लिया था, ये मैंने अपना डिनर खा लिया था, सो आई वॉज नॉट हंग्री, इसलिए मैं हंग्री नहीं था, इसलिए मुझे भूख नहीं लग रही थी। इट हैड स्नोड इन द नाइट, स्नोड मतलब क्या होता है, स्नोफॉल होना, ठीक है, स्नो का गिरना यानी कि ओलों की बारिश होना, ठीक है, बर्फ की बारिश होना। सो द बस डिड नॉट अराइव, रात में क्या हुआ, इन द नाइट व्हाट हैपेंड, इट स्नोड, इट हैड स्नोड, स्नोड मतलब क्या हुई, बारिश हुई, ठीक है, इसलिए क्या हुआ, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट, यस, व्हाट हैपेंड इन नाइट, नाइट में sorry, now check it again, it had snowed in the night, रात में क्या हुआ, स्नोफॉल हुआ, so the bus did not arrive. Now what we are saying, something happened in the past, past में कुछ हुआ और उसी का रीजन हम लोग अभी प्रेजेंट में बता रहे हैं, है ना, कि ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा नहीं हो पाया, सो इसके लिए भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट आप चेक करेंगे दिस वन, point number 3, something that started in the past and continued up to एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर एक्शन इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में ही कुछ स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही कुछ फिनिश हो चुका है। लेट्स सपोज इसको ऐसे समझे कि 2012 में आपने कुछ स्टार्ट किया था और 2018 में वो आपने फिनिश किया, 2012 से लेकर के 2018 तक आपने उसको फिनिश किया। तो इसके एग्जांपल से समझेंगे कैसे, व्हेन ही ग्रेजुएटेड ही हैड बीन लंदन फॉर 6 years, जब वो ग्रेजुएट हुए तो वो भी पास्ट की बात है। He had been in London for 6 years. वो लंदन में उस समय तक 6 साल के लिए रह चुके थे, ठीक है, तो वही 2012 से 2018 तक लेट्स सपोज उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, ठीक है, ग्रेजुएट करे वहां से उन्होंने, तो व्हेन ही ग्रेजुएटेड 2018 में जब वो ग्रेजुएट हुए, he had been in London, वो कहाँ पे थे, he had been in London for 6 years, वो लंदन में थे 6 years के लिए। I had just woken up when I saw a lizard on the wall, ठीक है, जब मैं सो के उठा, जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मैंने क्या देखा, वॉल पे एक लिजार्ड थी, ठीक है, सो दैट इज अगेन ऑफ द पास्ट टेंस, पास्ट में ही देखा और पास्ट में ही वो चीज खत्म हो गई है। मदर हैड कुक्ड डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, गेस्ट का आना भी पास्ट में था और मम्मी ने जो फूड कुक किया वो भी उससे भी पहले का पार्ट था, बिफोर दैट, है ना, कि जब गेस्ट आए उससे पहले ही मम्मी ने क्या बना दिया था, सब कुछ फूड बना के रेडी कर दिया था, राइट। आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस भी क्लियर हुआ है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को कहाँ पे और कैसे यूज किया जाता है। तो इट इज वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स, पास्ट में कोई एक्शन हुआ है उसकी पहले भी कोई एक्शन के बारे में बात करनी होती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सेकंड यूज हमने पढ़ा कि पास्ट का कोई रीजन देना होता है, पास्ट में किसी चीज का कोई रीजन देना होता है कि इस वजह से नहीं हो पाया, इस वजह से हो पाया, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को ही यूज करते हैं। थर्ड एंड द लास्ट वन वाज कि पास्ट में आपने क्या किया, पास्ट में आपको जस्ट अ सेकेंड, यस, पास्ट में आपने कोई काम स्टार्ट किया, पास्ट में ही वो काम फिनिश कर दिया था, तो उसके लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। So this was all about the past perfect tense. Today we are studying till here only. All the future perfect tense is here, is just ready only. But I want you to do the exercise of present perfect tense and past perfect tense first of all. ठीक है, आप पहले वो exercise कर लीजिए and in tomorrow's session we will be completing this future perfect tense part as well. ठीक है, कल वापस से आपकी कंप्यूटर साइंस की क्लास नहीं होगी डियर स्टूडेंट, टुमारो अगेन यू विल हैव द ग्रामर क्लास, ठीक है, कल भी आपकी ग्रामर की क्लास ही होगी, right? So tomorrow again we are meeting, so we will discuss the future perfect tense part, right? That's all for today's session. Thank you everyone for attending the session. Bye bye, have a great day.